بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مقصود ساجد، اس وقت کی چند اہم خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، ایک سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ایک نجی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ جو بات کمشنر راولپنڈی نے کی ہے وہی بات میں بھی کرتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے شعیب شاہین اور علی بخاری میرے مقابلے میں جیتے ہوئے ہیں، لیکن سر عام دھاندلی ہوئی ہے اور عدالتوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یعنی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے عدالتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن میں سر عام دھاندلی ہوئی ہے، لیکن عدالتوں نے اس بارے میں کچھ نہیں کیا۔ سپریم عدالت نے بھی نہ تو سو موٹو لیا ہے اور الیکشن کی اس کی ہیئرنگ کی بھی لمبی ڈیٹ دے دی ہے۔ حالانکہ ان کا کہنا تھا یہ تھا کہ سب الیکشن کو دھاندلی زیادہ حلقوں میں رکھوا دیا جاتا، اور جب تک ان پر کوئی فیصلہ نہ آتا تو ان کے نوٹیفیکیشن جاری نہ کیے جاتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ناظرین، یہ بات بڑی مضحکہ خیز ہے کہ کمشنر صاحب کی کہی ہوئے لگائے گئے الزامات کی تحقیق کرنے کی بجائے اس کی ذات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ ان کے تعلقات کہاں کہاں جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انکوائری تو اس بات کی ہونی چاہیے کہ کیا دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کمشنر صاحب کے بقول پنڈی کی ساری سیٹوں پر جس سیاسی پارٹی کے ہارے ہوئے امیدواروں کو جیت میں بدلا گیا ہے، وہ پریس کانفرنسیں کر کے کمشنر صاحب کا تعلق اپنی مخالف جماعت سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جو اس کا جن لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے سیاسی پارٹی کو، یعنی جن کے امیدوار ہرے ہوئے تھے اور ان کو ہم نے جتوایا ہے، وہی ان کے خلاف جو ہے اب پریس کانفرنس کر کے ان کی کردار کشی کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یہ اس بات کا حل تو نہیں نا۔ اس کے اندر تو کوئی جوڈیشل یا کوئی کریڈیٹیبل جو اپنا ادارہ ہے وہ اس کی انکوائری کر کے رزلٹ مرتب کرے۔ درست فارم 45 لوگوں کے پاس ہیں جی، ان کو مد نظر آ کے رزلٹ بنائے جائیں، تو اس بجائے اس کے جو ہوتا ہے اشکشوئی کے لیے الیکشن کمیشن نے خود ہی اپنے افسران پہ ممبروں اپنے ایک مشتمل ایک کمیٹی بنا دی ہے جو اس کی انکوائری کر رہی ہے۔ وہ تو خود اس کے اندر ملوث ہیں اور ان کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں، وہ کیسے کو فیصلہ کر سکتے ہیں؟ بس یہ ہے کہ اس کے اندر کمشنر صاحب کو وہ توہین الیکشن کمیشن کر دیا جائے گا، جیسے پنجاب گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کے خلاف مقدمے درج کیے جائیں۔ بھئی آپ نے کسی کو سنا ہی نہیں، کوئی آپ نے شہادتیں نہیں دیکھی، کسی سے پوچھ گچھ نہیں کی، بجائے اس کے مطلب اس کو صاف کرنے کے جس کے اندر کوئی مکھی گری ہوئی ہے تو مکھی کو نکالنے کے بجائے آپ بتانے والے کو پکڑنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کون سے مطلب ہے کہ اس کے انصاف کے معیاروں میں سے معیار ہے؟ یہ کیسا تعلق ہے کہ اپنے تعلق والی جماعت کے امیدواروں کو ہم نے ہرا کر آپ کے امیدواروں کو کامیاب کر دیا ہے۔ کمشنر صاحب نے مزید یہ کہا ہے کہ یہ کون سا تعلق ہے جس کے ساتھ مطلب معاف کرنا، کمشنر صاحب نے نہیں کہا، لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کمشنر صاحب کے ساتھ کیسا اس پارٹی کا تعلق ہے کہ اس کے امیدواروں کو ہرا کے تو دوسری سیاسی پارٹی کے 12-13 امیدواروں کو کامیاب قرار دے دیا گیا ہے ایک ڈویژن میں۔
तो मतलब ताल्लुकात उनके साथ हैं जिनके बंदों को, हरे हुए बंदों को जिताया है, तो ना कि दूसरी जमात के साथ ही हो सकते हैं। नाज़रीन, ये धांधली कोई हादसाती तौर पर नहीं हो गई। पीपल्स पार्टी MQM और PML के दरमियान तय था, यानी ये पहले से मनसूबा बना हुआ था। सब अपनी अपनी जगह तीनों ही इलेक्शन को बांट लेंगे और PTI को आउट करके मुश्तरका हुकूमत बनाई जाएगी। यानी ये पहले से ये मनसूबा था कि ऐसे ऐसे जो है ना हमने सीटें बांटनी है। तो जो है ना, अब सिंध में देख लो पीर साहब पगारा क्या कह रहे हैं, ठीक है ना जी। इसी तरह कराची के जमात इस्लामी क्या कह रही है। तो सब अपने अपनी जगह तीनों ही इलेक्शन की सीटें बांट लेंगे और PTI को आउट करके मुश्तरका हुकूमत बनाएंगे। ये बात उन्होंने तीनों पार्टियों पर वाज़ेह हो चुकी थी। जब उन पर ये बात तीनों पार्टियों पर वाज़ेह हो गई और बार बार के सर्वेज बता रहे थे कि उनको तो 10% तक भी वोट नहीं मिलेंगे, लिहाजा उन्होंने बहुत बड़ी धांधली का मंसूबा बनाकर अपने अपने टारगेट्स हासिल कर लिए। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के बारे में बार बार सर्वेज आ रहे थे, हर हफ्ते के, हर रोज़ के। तो उसमें जब इन लोगों को अपनी शिकस्त नज़र आई तो इन लोगों ने सारों ने मनसूबा बना के धांधली करके अपने अपने टारगेट जैसे पहले मनसूबा था वो हासिल कर ली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन पावर शेयरिंग का फार्मूला तकरीबन तय पा चुका है। बिलावल भुट्टो ने अपने एक जलसा ठट्ठा के अंदर एक जलसा में बताया है कि मुझे वज़ीर आज़म बनने की भी ऑफ़र की गई है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है। ये इंकशाफ उन्होंने खुद एक जलसा में किया है। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म बनने की इनकार की वजह ये भी बताई जाती है कि PML के लीडरान ने कहा है कि पहले 3 साल वज़ीर आज़म हमारा होगा और फिर आखिरी 2 साल के लिए पीपल्स पार्टी का। लेकिन चूँकि पीपल्स पार्टी को ये इत्मीनान नहीं है कि हमारी बारी आने तक हमारी हुकूमत रहेगी भी कि नहीं, PML नून के मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीद हैं कि PP को हुकूमत के अंदर रहकर वजारतें भी लेनी चाहिए, जबकि पीपल्स पार्टी मुसलसल इनकार कर रही है। अलबत्ता आइनी ओहदों की डिमांड उनकी अपनी जगह पे कायम व दायम है। तो पीपल्स पार्टी ने नाज़रीन ये फैसला किया है कि हमें आइनी ओहदे जो हैं वो दे दिए जाएँ। मसलन जैसे सदारत है, स्पीकर कौमी असम्बली है, इसी तरह गवर्नर हैं सूबों के, ये सीटें हमें दे दी जाए तो हम वजारतें नहीं लेंगे। नाज़रीन, मुबैना तौर पर मरीम नवाज साहबा को वज़ीर आला पंजाब नामज़द होने के बाद सरकारी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी मुहैया कर दी गई है। ताहम मरीम औरंगज़ेब ने इस खबर की तरदीद की है। नाज़रीन, इलेक्शन से लेकर आज तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल डाउन जा रही है। सरमायादार इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज़ा हैं, लिहाजा मईशत को मुसलसल नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में ट्विटर को बंद कर दिया गया है। फ़िलहाल तफसीलात का इस बारे पता नहीं चल सका। रात गए PTI के रहनुमा और MNA शेर अफजल मरवत के घर पर पुलिस ने रेड किया है, जहां से उनके लैपटॉप वगैरह और कुछ दस्तावेज़ात को उठा लिया गया है। उनके मुलाजमीन पर तशद्दुद भी किया गया है, कुछ तोड़ फोड़ भी हुई है। PTI के लीडरान और वर्कर्स के घरों पर फिर से छापे मारने और तोड़ फोड़ शुरू कर दी गई है।
एहतजाज करने वाले लोगों पर बहुत तशद्दुद किया जा रहा है। ख़वातीन को भी बुरी तरह घसीट कर पुलिस वैनों में डाला जाता है और पीटीआई को उनका जो एहतजाजी हक है नहीं दिया जा रहा। मुबैना तौर पर पीटीआई के एलामिया के मुताबिक वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से सियासी इत्तेहाद कर रहे हैं, जिससे सियासी हलकों में एक भूचाल सा आ गया है, क्योंकि इस इत्तेहाद से पीटीआई के कई सारे मसाइल हल होने जा रहे हैं और अददी बरतरी में भी इजाफा होगा और कौमी असम्बली के अंदर एक बड़ी पार्टी बन जाएंगे। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने परवेज़ खट्टक के साथ इत्तेहाद करने को अच्छा नहीं जाना। अवाम का कहना है कि इस शख्स की वजह से हमारे ऊपर पुलिस की ज़्यादतियों के पहाड़ तोड़े गए, लिहाजा इसके साथ इत्तेहाद न किया जाए। पीटीआई के लीडरों की तरफ से इस मामला को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें उनका मौक़िफ़ ये है कि पीटीआई पी से परवेज़ खट्टक और महमूद खान, जिन पर अवाम को ज़्यादा एतराज़ है, वो अब पीटीआई पी का हिस्सा नहीं रहे बल्कि छोड़ चुके हैं। ARY को दिए गए एक इंटरव्यू में पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल और वज़ीर आज़म के उम्मीदवार उमर अयूब खान ने कहा है कि PLMN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और PPP और MQM के साथ हमारा किसी तौर भी इत्तेहाद नामुमकिन है। इन्होंने एक दफ़ा फिर वजाहत की है कि हमारा इन तीन पार्टियों के साथ मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और महाजर कौमी मूवमेंट के साथ हमारा इत्तेहाद बिल्कुल इम्पॉसिबल है। नाज़रीन, PSL मैच के दौरान नौजवान शायकीन ने इमरान खान के नारे लगाने पर पुलिस और शायकीन के दरमियान मुठभेड़ हुई है, जो कि इंतहाई गैर मुनासिब है, क्योंकि हमारे ये मैचेस दूसरे मुल्कों में भी देखे जाते हैं और ये एक किस्म की सफारतकारी का ज़रिया भी हैं। मुबैना तौर पर PSL के बाइकाट की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, जो कि किसी तौर भी हौसला अफजा नहीं है। मुबैना तौर पर इतला है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह मियां नवाज शरीफ, जो कि मानसरा NA-15 की सीट से इलेक्शन हार गए हैं, लेकिन उनके जाली बैलेट पेपर अब भी छापे जा रहे हैं। ये छापा कुछ जर्नलिस्टों ने राय साकब खल के साथ मिलकर लक्ष्मी चौक पर एक प्रेस पे किया, छापा मारा और सूरत हाल को देखकर फ़ोन को पुलिस पर इतला भी कर दी गई। बाद लोगों का ख्याल है कि रिज़ल्ट को फार्म 45 और फार्म 47 के बराबर करने के लिए ये पेपर छापे जा रहे हैं, वरना अब 10 दिन के बाद इन बैलेट पेपरों की क्या ज़रूरत है। नाज़रीन, ये बैलेट पेपर सिर्फ सरकारी तौर पर ही छापे जा सकते हैं या सरकारी मुलाजमीन या ऑफिसरान की निगरानी में ही छापे जाते हैं। इसको हर कोई प्राइवेट प्रेस वाला नहीं छाप सकता, ये एक अलग से जुर्म भी है। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि इलेक्शन गुजर जाने के बाद इन बैलेट पेपर के छापने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। नाज़रीन, मुबैना तौर पर
राजा रियाज ने कमिश्नर रावलपिंडी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के एवज 25 करोड़ और फ्लैट लेने का इंकशाफ किया है। मुबैना तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से PMLN को वार्निंग दी गई है कि अगर आप हुकूमत बनाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे तो हमारे पास और भी ऑप्शन मौजूद हैं। इलेक्शन दोबारा भी करवाए जा सकते हैं। तो इस लिहाज से अगले 36 घंटे बहुत अहम हैं, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट हर वो फैसला करेगी जो PMLN को काबिल कबूल होगा। मुबैना तौर पर पता चला है कि BBC का नुमाइंदा जो कि पाकिस्तान के निगरान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब मुर्तज़ा सलंगी से मिलने PTV पहुंचा, तो सलंगी साहब ने उसके सवालों का जवाब देने की बजाय उसको धक्के देकर वहां से चले जाने को कहा, जो कि जर्नलिज्म की आज़ादी पर सवालिया निशान है। नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर, हमारे वतन अजीज़ पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए और हमें हर किस्म की परेशानियों से महफूज रखे। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज आइंदाबाद।